learning today, that is pair of linear equations. Okay, and in pair of linear equation, the today's topic is that is geometrically. आपको क्या करना है बेटा, उसको geometrically represent करना है. Okay, pair means we will get the two equations. Linear means when the power of the variable is 1. Okay, and equations means what, when left hand side comes equal to right hand side. कोई भी वैल्यू जो दूसरी वैल्यू के इक्वल होगी, we call it what, equation. Okay, now come to the next one. Here if you have any equation, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन होती है, then what is the method to draw it, geometrically कैसे उसको represent करते हैं, we are learning today. Okay, जिसको आता है नहीं आता, I know it that some of you know the answers of it. Okay, but be patient and just see this, that what is ma'am telling. Okay, so what we are doing beta, we are learning how to represent, कैसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे in which form, in geometrical form. represent equation, किसी भी इक्वेशन को किस फॉर्म में, geometrical form. Okay, so for this I am taking a very simple equation, that is x plus y equal to 4. सिंपल से स्टार्ट करके हम थोड़े थोड़े डिफिकल्ट पॉइंट पर जाएंगे. ओके, x plus y equal to 4. So for this equation we always need a table. हमेशा इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने से पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है बेटा, टेबल की. टेबल क्या होता है मैम, दिस टेबल इज फॉर इनपुट एंड आउटपुट. ये जो टेबल होती है बेटा, वो किसके लिए होती है, इनपुट और आउटपुट. व्हाट इज द इनपुट, व्हाट इज द आउटपुट? हियर द values which are x, that is input, output is y. You can say input मैम y हो सकता है, output x हो सकता है. Yes, my answer is yes. Okay, input x और y हो सकता है. So what is we are doing, we are giving the values to the x, and what is coming, that is coming the values of y. Okay, so let's see how to do it. Equation is here x plus y that equal to 4. x plus y किसके इक्वल है बेटा, 4 के इक्वल. Now give the input here, कुछ भी वैल्यूज दो, मर्जी है आपकी. 0, मैंने इनपुट क्या किया, 0. तो x अगर 0 है, y इक्वल टू 4. 0 प्लस y किसके इक्वल होगा बेटा, y इज इक्वल टू 4. व्हाट इज इन द टेबल, क्या था मेरे पास, x और y था. मैंने इनपुट दिया 0, इनपुट क्या आ गया, 0. y किसके इक्वल आ गया, 4. ओके, नाउ नेक्स्ट इफ आई पुट 1, x को मैंने 1 पुट किया, 1 प्लस y that is equal to 4. 1 plus 5 equal to 4. इस 1 को, ये जो वैल्यू 1 की है, टेक इट ऑन दी राइट हैंड साइड. वैल्यू ऑफ y that is 4 minus 1 it equal to 3. Value of y equals to 3. So in the table what I write here, 1 के साथ कितना आया बेटा, 3. Then put 2. अब 2 पुट करते हैं, कहाँ पुट करें मैम, x की बजाय y में पुट करके देखें, है ना. क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस, है ना. x की बजाय मैम क्या करते हैं, y में पुट करके देखते हैं. यस बेटा, यू कैन पुट इट. मैंने y को 2 पुट कर दिया. व्हाट आई एम पुटिंग हियर, 2. सो x plus y व्हेन इट इज इक्वल टू 4, तो बेटा x y को 2 रखो, इक्वल टू 4. 2 इधर जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x minus this 4 minus 2 that is equal to 2. x is coming equal to 2. 2 पर आंसर क्या आ गया, 2. Now question will be like this, मैम नेगेटिव पुट कर सकते हैं. Yes, you can put negative also. नेगेटिव वैल्यू पुट करो. x को -1 पुट कर दे मैम, -5 पुट कर दे मैम. Yes, पुट करो. -5 plus y equal to 4. -5 plus y equal to 4. Take this -5 on that side. 4 plus 5 equal to 9. What is the input? That is -5. मैंने क्या लिया बेटा, इनपुट -5. और आउटपुट आंसर क्या निकल के आया, आंसर इज 9. मैम ये तो बहुत सारी वैल्यूज हो गई. सो आई विल टेल यू व्हाट्स द शॉर्टकट एंड दिस इज द मेथड टू गेट द टेबल. ये मैंने जो अभी बताया है वो क्या है बेटा, टेबल.
है ना, टेबल में वैल्यू कैसे होती है. एंड वन मोर थिंग बेटा, एवरी लेक्चर इफ इट इज नॉट क्लियर, समटाइम्स इट इज देयर दैट बीच में कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है. So I'm making keeping all the lecture on the YouTube. Okay, so you can check each and every lecture on that. Okay, if in between you see that there is a problem. Okay, so what we learned that is that if it is the table, अब इनकी प्लॉटिंग सीखते हैं. What we are learning now, plotting. Plotting, what किसकी प्लॉटिंग सीखे मैम? प्लॉट दी पॉइंट्स. ये होते हैं बेटा पॉइंट्स, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट. क्या बोलते हैं इनको? कोऑर्डिनेट. इन दिस कोऑर्डिनेट, दिस इज व्हाट? आवर एक्स एक्सिस. जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिखाई दे रही है ना आपको, ये जो एक्सिस है, देख रहे हो, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल्ड इट एक्स एक्सिस. क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस. एंड द अनदर वन, कैन यू सी इट? दूसरी वाली कौन सी है? ये रही, है ना, ये लाइन. इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन. वी कॉल्ड इट वाई एक्सिस. व्हाट वी कॉल्ड इट? वाई एक्सिस. एक तो हमने क्या पढ़ेंगे? एक्स एक्सिस. एक क्या है हमारे पास? वाई एक्सिस. अच्छा ये बताओ, ये पूरा पूरा जो सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ. डिस्कशन ग्रुप इज देयर फॉर यू. यू हैव टू आंसर इट. जल्दी आंसर करो. व्हाट वी कॉल्ड, what we called it, what we call this complete system. इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इट इज कार्टेशियन प्लेन. क्या बोलते हैं बेटा इसको? कार्टेशियन प्लेन. एंड व्हाट आर दीज? ये जो पूरा का पूरा प्लेन है, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ना. व्हाट वी कॉल दिस पार्ट? इस पार्ट को क्या कहते हैं? ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, पूरे प्लेन को इतने 4 पार्ट में डिवाइड. वेरी गुड, वेरी गुड. इट मींस यू हैव स्टडीड वेरी प्रॉपर्ली इन योर 9th क्लास, है ना. आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया है. यस, वी कॉल इट क्वाड्रेंट. क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्वाड्रेंट बोलते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. क्वाड्रेंट के बाद प्लॉटिंग कैसे करते हैं, है ना. देखो जरा कैसे करते हैं. एक्स 0 वाई 4. 0 के साथ x जब 0 है तो y मेरे पास क्या है बेटा? 4 है. x 0 पर y कितना है? 4. ओके, सो हाउ टू प्लॉट इट? लेट्स सी दिस. देखो, जब x की बात हो, यू हैव टू मूव द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. आप लेफ्ट और राइट में जाएंगे. किसमें जाएंगे? लेफ्ट और राइट में. जब किसके बारे में बात होगी? x के बारे में. किसके बारे में? x के बारे में. एंड व्हेन वी आर डीलिंग विद y, जब y के बारे में बात हो तब कहाँ जाए मैम? तब बेटा आपको ऊपर और नीचे जाना है. ऊपर और नीचे मीन्स अप एंड डाउन. आई थिंक थिंग्स आर क्लियर टू यू. यू हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू योर कोऑर्डिनेट्स. जो पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? मूव करना है. एक्स हो तो लेफ्ट और राइट, और वाई हो तो क्या होगा? अप और डाउन. कैसे? इफ इट इज पॉजिटिव मूव टू दी राइट हैंड साइड. पॉजिटिव वैल्यूज पर राइट हैंड साइड पर मूव करना है. नेगेटिव वैल्यूज हो तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड. If it is positive, move upside. If y values are negative, देख रहे हो मैंने x को -5 लिया हुआ है. Can you see this? -5. तो कहाँ जाए मैम? This is our x axis. ये है मेरी पूरी x axis. तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? On the left hand side. Got it बेटा? Okay. Now come to this. How to plot it? The point is here. Point we have here 0, 4. देखो 0. अब देखो x यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 0, ये 0 है. अब मैम 0 आ गया ये तो बेटा ना तो लेफ्ट में जाओ ना राइट में, यहीं रहो. 0. देन y कितना है? 4. y 4 है. अब जाओ ऊपर. ये गए ऊपर, ये आ गया. ओके, अब ये 0 था ना, जस्ट इमेजिन इट, डोंट ड्रॉ इट. मुझे इसको ड्रॉ नहीं करना, मुझे सिर्फ इसको इमेजिन करना कि ये मेरा 0 था. तो 0 पर वैल्यू कितनी आ गई? 0, 4. नेक्स्ट पॉइंट 1, 3. कैन यू सी दिस? 1. ये देखो, ये रहा मेरा 1, 3. y कितना है? 3. y कहाँ है? ये रहा. y एक्सिस ये ऊपर जाना है मैम. ऊपर जाना है तो ऊपर जाओ. चलो 1, 3. तो हम कहाँ पहुंच गए बेटा? 1, 3 पर. नेक्स्ट, आई एम जस्ट नाउ टेलिंग द पॉइंट. देखो, अगर मेरे पास 2 है तो आंसर क्या है? 2. 2 पर आंसर क्या है? 2. 2. दिस इज 2. मूव अपसाइड. देखो पहले यहां से चले 0 से. ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन. मूव ऑन दिस साइड. 2 आ गया.
अब y कितना है 2, तो ऊपर जाओ, ये पॉइंट आता है बेटा, दिस इज 2, करेक्ट। नाउ -5, मैम ये नेगेटिव वाली भी बताओ जरा। सो दिस इज योर आंसर, -5 पर 9 है। देखो आई एम हेयर एट 0, मैं 0 पर हूं, -5 मतलब कहाँ जाएंगे, ये यहाँ x एक्सिस के नेगेटिव, दिस इज -5। 9 यहाँ मार्क लगा दूं, नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे तो y भी पता है, -5 के बाद ऊपर जाना है, कहाँ जाना है, एट 9, कहाँ पर जाना है बेटा, 9 पर। तो -5 पर ऊपर गए तो ये पॉइंट आ गया 9, दिस इज आवर 9। नाउ जस्ट सी हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ को, तो ये आ गया, ये क्या है, ग्राफ, दिस इज आवर ग्राफ। कैन यू सी दिस, दिस इज आवर ग्राफ। नाउ मैम कैन वी एक्सटेंड इट, यस, आंसर इज यस। आप उसको सीधा लेके जाओ, आप कहीं तक भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ग्राफ कहीं पर भी वैल्यूज दे सकता है, वी कैन एक्सटेंड इट बोथ द साइड। ओके, टेल मी अप टू हियर इज इट क्लियर? क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है दैट हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ? क्योंकि अगर ये ही क्लियर नहीं होता बेटा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अ गुड रिप्लाई। ओके, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव डन, वी हैव ड्रॉन द ग्राफ। हमने ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया मैंने, व्हाट्स द वर्क, काम क्या है, काम क्या है, काम क्या है बेटा? Now from this, okay, thank you so much. This 10th, 10th, B 9th class and 11th, these are the best students. But in 12th class, I don't know what's the problem. Either students are very shy or they don't know. है ना, 10th class और 11th class 9th class में बहुत मजा आता है मुझे पढ़ाने में, एंड 10th class स्पेशली सबसे अच्छे जो हैं बच्चे 10th class के हैं, वेरी गुड रिप्लाई दे आर डूइंग, वेरी गुड रिप्लाई दे आर गिविंग, एंड करेक्ट आंसर, मेन थिंग रिप्लाई तो देते ही हैं, करेक्ट आंसर भी देते हैं। ओके, so give a clap for yourself. I'm clapping from this side. Okay, you can hear it. Okay, so here what we are doing, that is solution. अब क्या काम है मैम कि मेरे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया, इक्वेशन को ड्रॉ कर दिया, बट व्हाट इज द नेक्स्ट वर्क? नेक्स्ट वर्क क्या होगा बेटा, यू नाउ टेक टू सॉल्यूशंस, सॉरी टू ग्राफ्स, क्योंकि मेरे चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चैप्टर नेम इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशंस के पेयर को पढ़ेंगे, मतलब दो इक्वेशंस होनी चाहिए। तो मैम उससे क्या होगा, ग्राफ होगा, तो उससे क्या होगा, लेट्स सी दिस बेटा। इफ आई एम प्लॉटिंग वन ग्राफ, मैंने ये ड्रॉ कर दिया एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ मैंने ये प्लॉट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है ग्राफ, हाँ हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ग्राफ को, व्हेन दे इंटरसेक्ट, जब ये ग्राफ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, कैन यू सी दिस, दे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, दैट विल गिव द सॉल्यूशन। वो क्या देता है बेटा, सॉल्यूशन देता है, वेयर द ग्राफ, वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट, जहां पर ग्राफ इंटरसेक्ट करे, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ, उसी को ही क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन इज दिस सॉल्यूशन, देखो यहाँ पॉइंट आएगा, this point, these all points are the solution of this graph, x plus y equal to 4, let consider कर लिया मैंने कुछ भी, and this graph is 4, let it equal to y equal to 2, ये y equal to 2 के लिए है, तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स है, ये सॉल्यूशन है इस ग्राफ के, these are the solution of this graph. but मैम what's the special, special is this बेटा, ये है स्पेशल, ये क्यों है ये स्पेशल, ये सभी के सभी इस ग्राफ के सॉल्यूशन थे, ये के सभी इस ग्राफ के सॉल्यूशन थे, बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, दैट सॉल्यूशन इज फॉर बोथ, ये जो सॉल्यूशन होगा इट इज फॉर बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के लिए क्या होगा बेटा, दैट इज द आंसर। आप दोनों में वैल्यूज पुट करके देखना, दोनों को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड विल कम इक्वल टू राइट हैंड साइड, गॉट इट, लेफ्ट हैंड साइड विल कम इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस हियर। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, दैट व्हाट इज द क्वेश्चन। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन, आई थिंक इट्स विजिबल टू यू।
Here question is, Aftab tells his daughter about what? 7 years ago I was 7 times as old as you were then. So this part we have done, है ना? Equations algebraically we have done it. Okay. So Aftab age, let it is x. Daughter's age, let it is equal to y. 7 years ago, मैम 7 माइनस कर दो दोनों की एज में से. टू मेक इट इक्वल, दोनों को इक्वल करना है तो मुझे डॉटर की एज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मैम दिस विल कम, देन 7 ब्रैकेट के साथ है तो 7 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ. ऐसे तो नहीं 7 वाई वाई से मिलेगा, 7 दोनों भाई गेट के बाहर अगर कोई गेस्ट आता है, सो इट इज गुड टू मीट विद ईच एंड एवरी मेंबर. ओके, सबके साथ इंटरेक्शन. टीचर अगर आएगा तो टीचर स्टूडेंट के एक के साथ बात करेगा तो अच्छा लगेगा? नो, यू हैव टू इंटरेक्ट. आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा विद द ऑल द स्टूडेंट्स. ओके, सो दैट आई एम डूइंग दैट. अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है सो इट विल इंटरेक्ट विद ऑल द नंबर्स व्हिच आर इनसाइड इट. तो क्या आएगा? x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई, 7y होता है, 7 7 जा 49 होता है. Take the variables on the one side and the values, constant values on the another side. Okay, so what I got, x minus 7y that equal to, इसके इक्वल आएगा minus 42. This is my first equation. ये मैंने क्या लिख दिया बेटा? First equation. Now come to the next one. Next के ऊपर आओ. Here the second condition is this. अब उसने 3 साल पहले बाद की बात करी है. What is this? That present age is x. Daughter's age is y. 3 years from now, 3 साल बाद. 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? y plus 3, x plus 3. x plus 3 and y plus 3. Now, it is 3 times as old you were then. मैं तुमसे 3 गुना होगा. कौन बोल रहा है? आफ्ताब. आफ्ताब तो बड़ा है, but daughter की एज को मल्टीप्लाई करते हैं. So x plus 3 we get here equal to 3y plus 9. Then take the variables on one side and constant on another. So this part we have already done, so that's why I'm telling it very quickly. It equal to 6, so that we can come to the question. So what we have, beta, can you see it? We got 2 equations. Now what is the work, ma'am? क्या काम है यहाँ पर? काम क्या है बेटा? You have to find the solution. Find solution. Solution find out करो. Okay, how to get the solutions? Let's see this. Check करते हैं कि कैसे solution होगा. So what I am doing here, I am drawing a table. हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं. Okay. Now after making this table, what I do beta, I will find out the values of x and y. अब मैम 4 4 5 5 वैल्यू निकाले? नहीं. क्या? एक easiest method बताती हूँ आपको. What is the easiest one? One time put x equal to 0. एक बार तो x को 0 पुट कर दो, फिर y को 0 पुट कर देना, बस यही. यस, दिस ओनली. क्या बताया मैंने? इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द कंप्लीट, पूरे को फाइंड आउट करने से अच्छा है क्या, एक बार x को 0 पुट कर दो और एक बार y. सो व्हाट दिस टेबल, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42. इसके लिए टेबल बना लो. देखो पुट करो 0 माइनस 7y दैट इज इक्वल टू माइनस 42. ओके, 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42. माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42. माइनस से माइनस कैंसिल. y इक्वल टू 42 बाय 7. 42 बाय 7 मींस इक्वल टू 6. कितना आ गया आंसर बेटा? 6. x को 0 पुट करो, y कितना आ गया? दैट इज कमिंग 6. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. टेल मी व्हेन आई पुट y 0. आंसर इट इन डिस्कशन ग्रुप. जल्दी बताओ. When I put y equal to 0, y equal to 0, जल्दी बताओ. I want replies. If I put y equal to 0, what will be the answer? What will be the value of x in first equation? 6. Yeah, that is minus 42. Here Nancy is right. Nancy ने ठीक बोला. Answer is minus 42. देखो चेक करो कैसे. एक बच्चे ने जो रिप्लाई किया है दैट इज गुड. 6 तो आ गया बेटा. x को 0 पुट किया, y 6 आ गया. y को 0 पुट करने का है. x y is 0,
y 0 हो गया, समथिंग इंटू 0 दैट इज 0, -42, x इज कमिंग -42, y को 0 पुट किया, क्या आ गया -42, बस इसी से ही ग्राफ ड्रॉ होगा। देखो देखो आसान है ना। आई विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस टेबल ओनली। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलो एक बार हम क्या करते हैं, सेकंड टेबल के लिए भी ड्रॉ करते हैं, सेकंड के लिए भी। सो हियर दिस इज माय x and this is y. Let's see this x y. Okay, tell me when I put this x0 in second equation, can you see this? second equation में फटाफट से x पुट करके बताओ मुझे क्या आएगा। In the second equation, if I put 0, what will be the answer? Okay, it is coming 2, -2. Yeah, that's right. Answer is coming -2. बेटा देखो, एक बार ध्यान से समझो। चलो दोबारा से स्लाइड पे आओ and just see this that how ma'am is saying -2. देखो चेक करते हैं। This is my second equation, x minus y, x minus 3y equal to 0. मैंने कहा x को 0 पुट करो, 0 -3y as it is equal to 6। ठीक है, अब देखो -3 जो है ना वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, it is multiplying with this, so when I take it down side it will come as it is। ये चीज नहीं होता, -3 as it is। देखो अगर 6 प्लस में होता -3 + y = 6, तो हम कहते हैं y = 6 + 3, ये ऐड हो जाता है, माइनस का क्या बन जाता है प्लस। but what we are doing, we are taking this -3, this is in multiplication in division, so cut it, answer is -2। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है बेटा -2। सो हियर 0 पर वैल्यू कितनी आ गई -2। नाउ यू ऑल ट्राई फॉर दिस y = 0। चलो बताओ, when I put y = 0 in this equation, what is the answer? Yeah, that is it. Palak, Kanishka, Tanisha, Niharika, Kushal, they all are answering very nicely. Jyoti, yeah, it is good. Arzu, Nancy, okay, that's very fine. Okay, fine, fine, beta. Okay, so this is what we got. X = 6। देखो y को 0 पुट किया, मेरे पास आ गया x6। लेट्स ड्रॉ इट। अब हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। कंसीडर दिस इज आवर x एक्सिस, मान लेते हैं ये मेरी क्या है x एक्सिस, एंड दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज व्हाट y एक्सिस। ओके, नाउ कैन यू सी इट, जब बीच में जो आएगा वो ओरिजिन, बट कैन यू सी दिस, माय वैल्यूज आर गोइंग फ्रॉम -0 to -42। 0 से कहा जा रही है बेटा -42। so for it's good that one, if you want to change it you can change it, otherwise keep it as it is। तो अब आपको क्या करना पड़ता है, जो इंटरवल्स है उनको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, आई डोंट वांट दिस बिगर वैल्यू, मुझे ये बड़ी वैल्यू अच्छी नहीं लग रही, तो आई एम चेंजिंग इट। x - 7y = -42, आप उससे भी कर सकते हो, आई विल टेल यू हाउ, बट आई एम चेंजिंग इट। ओके, सो x क्या करें मैम, कौन सी वैल्यू ऐसी पुट करें जिससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, है ना। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकल हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखो मैं क्या पुट करती हूँ बेटा, 7 पुट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को अपने नंबर को किससे डिवाइड करना है, 7 से। 7 - 7y = -42, -7y = -42, -7, -7y = -49, आंसर इज कमिंग 7। 7 पुट करने पर आंसर क्या आ गया, 7। इज इट राइट? 7 49 and 7 7s are 49। 7 - 7 into this, yes it is right। मैंने पुट किया 7 और आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। ओके, सो नाउ लेट्स प्लॉट इट। अब हम क्या करते हैं, वी लर्न हाउ टू प्लॉट इट। ओके, these are two equations, these are two tables, and we are going to plot it on our graph। Okay, so let's do it। It is here 1 2 3, wait for a second, here 4, this is 5 6 7। यहाँ क्या आती हैं सारी पॉजिटिव वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6। दिस इज हेयर माइनस, नेगेटिव आएगा, -1
-2, -3, -4, -5. Downside it will come negative, -1, -2, -3, -4. Okay, so let's draw it. What we have first 0,6, 0,6, 0,6. देखो 0, यहाँ क्या है मेरा 0, दिस इज आवर पॉइंट 0, ये क्या है 0, 0 से किस पे जाना है बेटा 6 पे, 0 से 6, तो 0 को प्लॉट मत करना, क्या करेंगे यहाँ से 6 पर जाओ, ये आंसर आ गया. आई थिंक इट्स नॉट विजिबल. ओके, कौन सा कलर यूज करें? ओके, दिस वन, दिस इज आवर पॉइंट 0,6, वाइट यूज करते हैं. This is 0,6. Okay, this is this one. Next, 7 with 7, x7 y7, ऊपर से ले जाओ 7 और यहाँ है 7 मेरे पास, ये रहा पॉइंट 7, ये रहा 7, 7 पे 7, ये आ गया यहाँ, देख रहे हो, दिस इज द पॉइंट. ओके, नाउ ओनली यू हैव टू ज्वाइन दैम. अब आपको सिर्फ इनको ज्वाइन करना है. दिस इज, एक मिनट, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया. दिस इज गोइंग थ्रू दिस, दोनों के दोनों पॉइंट किस में से जाने चाहिए बेटा, इसमें से जाने चाहिए. गॉट इट? क्लियर? ये जो पॉइंट है वो किस में से जाएगा, 6 में से, और दूसरा जो पॉइंट है वो किस में जाएगा, इसमें से, इसमें से 7, 7 में से, और किस में से, फ्रॉम 0, 6. नेक्स्ट 0, -2. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? दैट इज 0, -2. 0, बट वेयर इज 0, 0, -2. y कितना -2, तो नीचे चले जाएंगे. दिस इज आवर पॉइंट 0, -2. नेक्स्ट 6, 0, वेयर इज 6, दिस इज 6. 0, 0 कहां पर, यहीं पर, तो y मूव करने की जरूरत ही नहीं है. ओके, नाउ जस्ट ड्रॉ द लाइन आउट फ्रॉम दिस. ठीक है, अब इसमें से क्या करा, लाइन को ड्रॉ कर दिया. सो वेयर द लाइंस विल इंटरसेक्ट, जहां पर लाइन क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्ट, दैट विल बी द सॉल्यूशन. क्योंकि इसने कहा था कि सॉल्यूशन मत ड्रॉ करो, ओनली यू हैव टू रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली. आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन में देख रहे हो, यू हैव टू रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली, आपको सिर्फ ग्राफिकली शो करना है. ओके, so this is today's work. Here the next point is here, the coach of cricket team buys 3 bat 3 ball. Okay, so this is how to do it. The 3 bat, so that is 3x, 6 ball, that is 6y, equal to 3900. Next, 1 bat x, 3 more ball means 3y, that is equal to 1300. Okay, now tell me, if I put x 0, agar x 0 ho jaye, what will be the answer? If x is 0, tell me. If x is 0, what will be the value of y? x को 0 पुट करके देखो, 0 plus 6y equal to 3900. Yeah, that is coming 43.53. Okay, that's good. Now put y 0. जल्दी बनाओ, y को 0 पुट करो. Put y 0 now. Okay, 1309. 1309. Yeah, very correct. Okay. Now put x equal to 0 in the next equation. Next equation put x 0. Put x equal to 0 in the next equation. Yeah, that is right. x 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 1300. No, 1300 कैसे बेटा, 650. Okay, that is right, 650. Now put y 0 in the next equation. 1300 by this.
1300. Okay, that is coming y equal to 1300. Okay, that is right. So only what to do, you have to plot it. अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको प्लॉट करना है. ओके, आई गॉट द आंसर्स. कम टू द स्लाइड नाउ. क्या आपने क्या किया, जो आपने वैल्यूज बताई उसके अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ को ड्रॉ करा, एंड आफ्टर ड्रॉइंग इट, जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया, देन व्हाट आई गॉट दिस वन. देखो पॉइंट्स आर हियर x 0 y दिस. तो देखो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. 0, देन दिस इज 100, 200, 1300. बजाय ऐसे करने के 200 से स्टार्ट करते हैं. 200, then this is 400, then next is 600, next 800, then 1000, next here 1200, 1400. This is sufficient. 1200 and 1400. Same as it is with this. यहाँ भी ऐसे ही कैसे. Okay, so let's see this. X 0, y 43.5. अब देखो फ्रैक्शन आ गया. फ्रैक्शन के लिए मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. कैन वी डू इट? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ बेटा, मर्जी आपकी, आप कुछ भी वैल्यूज पुट करो. आप 43.3 थे पुट करो तब भी आएगा. देखो कैसे आएगा. 0 to 200, दैट इज इन बिटवीन 100. 100 से पहले वाली वैल्यू जो होगी वो क्या बनेगी आपकी? 43.3. थोड़ा सा पहले है ना. ये मेरा क्या है? 100. दिस इज माई 100 पॉइंट. सो दिस विल कम हियर. यहाँ देखो ये इसमें दिखाई दे रहा, अदरवाइज आई कैन रिप्रेजेंट इट. यस, दिस इज द आंसर. ये आ गया मेरा पॉइंट. I think it's not visible to you. Wait, this is the point. Now it's visible. 0 से 200 के बीच में. Next, x 300, y 0. x क्या है? 300, 1300 and y 0. तो ये यहाँ कुछ आएगा. Now just join them. आप join करो इन दोनों को. Wait. This is the graph. ये मिल गया ग्राफ मेरा. Okay, next, x 0, y 650. x 0 है और y कितना है मेरा? 650. तो क्या आएगा? This is 200, 400, then next is here 800. तो 4, next is 600 है ना. next क्या होगा? 600. next is 800. तो 600 और इसके बीच में बिल्कुल यहाँ ये क्या आएगा मेरा? this x 0 y is 650. next 300 to 0. ये तो सेम पॉइंट आ गया. ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट. अब आपको क्या करना है, इनमें से पास करते हुए एक लाइन लेके जानी है. सो कैन यू सी दिस? क्या आप देख सकते हो यहाँ पे that what is the solution here, what is the solution which is satisfying both? That is 1300 with 0. 1300 with the 0. Tell me students, is this today's topic clear to all? If anybody have a confusion, just write in discussion group. Ma'am, please repeat. देखो points are 0, 43.5. points पहले प्लॉट कर दो बेटा. पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद लाइंस को ड्रॉ करिए. ओके, एंड इफ यू आर फीलिंग डिफिकल्टी इन ड्राइंग द 0, 43.5, क्या देखो जरा, x को कुछ ऐसा ले लेते हैं जिससे सिंपल वैल्यूज आए. कैसे? x इक्वल टू आई एम टेकिंग 200. x को 200 पुट कर दो. 200 देखो जरा क्या आएगा. 3 into 200 plus 600, 6y equal to 390. then 600 plus 6y, that is equal to 3900. then y equal to here, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 3300 by 6 है ना. आ गया आंसर. how many solutions we have to find? 2 are sufficient, but don't make it with one. one solution से कभी भी आंसर नहीं निकलेगा. you have to take the 2 solutions. आपको क्या करने पड़ेंगे? 2 solutions लेने पड़ेंगे. okay, now make the equations for this one. जल्दी करो. make the equation for the next one. make equation. 2 kilogram of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grape is 300. Hurry up. Do this is as quick as you can. 2 kg of this. So answer will be, I am telling it here, 2x plus y
equal to 160 and 4x plus 2y, 4x plus 2y, that is equal to 300. Okay. Now your work is to try to plot in your graph. Graph के ऊपर आप plot करना and then easily you can present it. Okay. So goodbye all of you. Take care. Okay. And do hard work for yourself, not for your teacher,